Yes, this is your 21-22 syllabus. In this 21-22 syllabus, today we are going to start with data file handling. Now this is your complete data file handling syllabus, in which you are having introduction to files, types of files, text file, binary file, CSV file, relative and absolute paths. Then in text file you will learn opening a text file open modes. These are the modes, 6 modes we will learn. What is R, what is R plus, what is W, W plus, A plus. Closing a text file, opening a file using with clause, writing, appending data to a text file using write and write lines, reading from a text file using read, read line and read lines, seek and tell methods, manipulation of data in a text file. Now why I am showing you this, because last year's syllabus you will see these were not there. Last year's syllabus I will show you. This is the last year's syllabus. So when from your book also you will find normally in all the books the last year's syllabus is there. So you just go through the portion and this is your last year's syllabus. In this you cannot see this seek, tell method, all these things you will not see in the last year's syllabus. But this year's syllabus, this is your this year's syllabus. So seek and tell method, manipulation, these all things are new this year, which we have to learn. Next, in binary file, basic operations on a binary file, open using file open modes RB, RB plus, WB, WB plus, AB, AB plus. Close a binary file, import pickle module, dump and load method, read, write, create, search, append, update operations in a binary file. So here till update operation is given, but when you will design your projects, you will require a delete operation also. So in this, delete is not there in your syllabus, but we will do little bit of delete, which you will use in your project. Because in project you will use create, then after creating you have to read and display, you have to search, you have to add, you have to update. If it is required to delete, suppose student management system, a student is taking TC and you want to delete any record, so we will do the delete also, but it will be not asked in your theory paper, only for the project work we will do it. Next, CSV file, import CSV module, open, close CSV file, write into a CSV file using csv.writeRow and read from a CSV file using csv.reader. Now here also you can see only write and read operations is given here. In question paper, in CBSE question paper, search was also I think included. All right, only read and write is given in your syllabus. But for our project work, we will do the search, update and delete operation also. Same thing for our project work, two things we will do for our project. One is in binary file, we will do delete operation. So this will be only for your project. In binary file, extra which we are going to do delete operation, and in CSV files we will do all search, only read and write is there in your syllabus. So using write and then read and display. So obviously using read you can search also. So search will be asked in exam. And then update and delete is not given. Update and delete we will use in our project. So these two extra we have to do for our project work. Only for our project work we will do it. And the remaining is important for theory as well as project. So this you make notes, because many things you will not get in your books as some changes are then there in your syllabus. So let us start with this, what it is, how it is being done. Now
why there is a need of file handling. First thing what we learn is why we are studying this topic. Whenever we are learning a new topic, data file handling, we are going to learn. Data, you all know what is data, all the raw facts and figures. File handling means you are saving all your data in the form of file, and how you are handling that file. That is how you are creating a file, how you are storing data in it, how you are searching the records in a file. So all the different tasks with those datas, and this is stored in the form of file in permanent storage device. You are storing it. So it is very easy that if you want to send those datas to somebody through mail, through WhatsApp, so easily you can send it, you can carry in a pen drive from one place to another because it is in a form of file. Now let us see some points. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device. File helps us to store the data permanently, which can be retrieved for future use. Now many notes are given. I will share with you all the notes. I want to open the NCERT book actually. So this is your NCERT book, chapter 2, data file handling in Python. I have already shared with you. So let us go through first the NCERT book and then the other PPTs and all. I will go through the PPTs. So first let us go through the NCERT book. Now what is file handling? What is the use? Why we are learning it and how you will use in your real life. There are many ways of trying to understand programs. People often rely too much on one way, which is called debugging, and consists of running a partly understood program to see if it does what you expected. Another way, which machine language advocates, is to install some means of understanding in the very programs themselves. So this is by Robin Miller. Now we will go through what all things you are going to learn in this book. Introduction to files, how many different types of files are there, how to open and close a text file. So three types of file we are going to learn: text file, binary file, and CSV file. I think this is the old book, that's why they have given here only about text file, and you can see at the end only binary files, pickle module. CSV is not given here. So in this NCERT book, this is the old book, that's why CSV is not given. So CSV notes you make it, or in other books also you will get CSV. So in NCERT book, this book which I have shared with you, only till pickle module it is given. Next, introduction to file. So what is file? Why we are learning this? Data file handling, how we will use it. These type of questions will be asked. So we have so far created programs in Python that accept the input, manipulate it, and display the output. But that output is available only during execution of the program, and input is to be entered through the keyboard. कहीं पे हम सेव नहीं करते थे. जो भी हम अभी तक हमने जो भी सीखा है उसमें क्या सीखा है, खाली कीबोर्ड से हम इनपुट देते थे और खाली कीबोर्ड से ही दे सकते थे, कहीं और से हम इनपुट इसमें नहीं डालते थे. अब हम क्या सीखेंगे, सपोज इंटरनेट में जो डेटास है, जो तुम लोग का प्रोजेक्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो भी गवर्नमेंट डेटास है, ऑफिशियली गिवन डेटास आर देयर, CSV डेटा, CSV फाइल रहेगा, उसमें सारे डेटास हैं. जैसे सपोज कोई कोविड के ऊपर बनाना चाहता है प्रोजेक्ट, कोई पॉपुलेशन के ऊपर किसी भी टॉपिक पे बनाना है, तो गवर्नमेंट साइट से हम डेटास को कलेक्ट करेंगे. वो सारे डेटा CSV फाइल में है, तो .csv करके हम सर्च करके उसको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उन डेटास को हम यूज कर सकते हैं इसमें. लेकिन अब तक हम लोग क्या करते थे, ओनली द इनपुट वाज गिवन थ्रू द keyboard and after execution the output was displayed. This we were doing till now. This is because the variables used in a program have a lifetime that lasts till the time
द प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन। जितने वेरिएबल्स थे उनका लाइफ टाइम कितना होता था, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर्ड होते थे, और जैसे ही प्रोग्राम एंड हो जाता है वो वेरिएबल्स और मेमोरी में उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता था, तो वो और वैल्यूज भी नहीं रहते थे और वेरिएबल्स भी नहीं रहते थे। What if we want to store the data that were input as well as the generated output permanently so that we can reuse it later? ठीक है, मीन्स हमको स्टोर करना है सारे डेटास, चाहे वो इनपुट डेटा हो चाहे वो आउटपुट डेटा हो, परमानेंटली, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सके। Usually, organizations would want to permanently store information about employees, inventory, sales, etc. to avoid repetitive task of entering the same data. जैसे स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, अब अगर हमसे डेटा मांगा जाए तो हम डेली 2500 स्टूडेंट्स का डेटा तो हम डेली टाइप करके नहीं दे सकते हैं, तो वो हम कहीं पे सेव करके रख देंगे और उस फाइल को हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, उसमें एडिटिंग हो सकता है। सपोज कभी 2500 स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी मांगा जाए तो हम ईमेल आईडी को शेयर करेंगे। जब फोन नंबर मांगा जाता है फोन नंबर को शेयर करते हैं। जब एडमिशन नंबर, तो जो भी डेटास मांगे जाते हैं हम उस हिसाब से शेयर करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में सारे एम्प्लॉयज, इन्वेंट्री, सेल्स, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, इसके ऊपर रेपिटेटिव टास्क होते रहते हैं और उसके लिए रेपिटेटिव एंटरिंग ऑफ डेटास इज नॉट पॉसिबल। मीन्स पॉसिबल, ठीक है, डाल सकते हैं, बट इट इज जस्ट तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, इसमें एनर्जी भी वेस्ट होगा। तो अगर परमानेंटली हम स्टोर करके रखें, हम उसी को बार बार रीयूज कर सकते हैं। Hence, data are stored permanently on secondary storage devices for reusability. ये पॉइंट्स को लिखते रहोगे। हम क्यों सीख रहे हैं इस चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग को? एक तो पहला पॉइंट है, हम इसमें परमानेंटली स्टोर करके रखेंगे डेटास को। कहाँ स्टोर करेंगे? किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड्स। किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हमको सपोज पूरे सारे सीबीएसई में जितने 1 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, सारे डेटा को मेरे को अभी तुरंत लेके कहीं जाना है, सपोज दिल्ली जाना है, तो मैं क्या करूंगी? एक छोटा सा मेमोरी कार्ड आता है, मैं सारे डेटास को उसमें परमानेंटली, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेने से क्या होता है, मैं उस छोटे से मेमोरी कार्ड को अपने किसी भी उसमें डाल के हम ले जा सकते हैं, बैग में डाल के ले जा सकते हैं। बस यू कैन कैरी दैट मच डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर तुम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करोगे तो तुम एक जगह से दूसरी जगह, हाँ आजकल हम लोग क्या करते हैं, सीएसवी फाइल को मेल कर देते हैं और वहां जाके अपना मेल खोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज वहां पे अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ तो तुम अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ले जा सकते हो फॉर रीयूजेबिलिटी। तो इसको भी थर्ड एडवांटेज भी मिल गया तुमको, रीयूजेबिलिटी। हाँ बोलो। मैम क्लास 11 की क्लास कॉपी में ही लिखेंगे ना क्लास 12 वाले? हाँ, उसी में लिखो, क्योंकि 11 का पूरा तो आएगा ही, तुम्हारा 12 में रिवीजन पोर्शन आएगा ही, उसी में लिखो। जिन लोग के पेजेस कम है उन लोग नया कॉपी बना लो, ठीक है। या इसी को फिल करके दोनों, इसको 1 कर दो, कॉपी नंबर 1, और उसको फिर कॉपी नंबर 2 कर दो। 11th की कॉपी को सब लोग रखोगे ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन टूर पूरा आएगा, 14 to 20 मार्क्स क्वेश्चन तो उसी से आएगा, 11th पोर्शन से ही आने वाले हैं, उसी में लिखो, ठीक है। वी स्टोर पाइथन प्रोग्राम्स रिटन इन स्क्रिप्ट मोड विथ द .py एक्सटेंशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स को हम लोग जब सेव करेंगे तो .py एक्सटेंशन से प्रोग्राम को भी सेव करेंगे। ईच प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी डिवाइस एज अ फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, जब डेटास को भी हम सेव कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, प्रोग्राम्स को भी सेव करेंगे। Likewise, the data entered and the output can be stored permanently into a file. तो डेटास को भी और उनके आउटपुट्स को भी हम लोग स्टोर करके एक फाइल में स्टोर करके रखेंगे। Now here, so what is a file? A file is a named location on a secondary storage media where data are permanently stored for later access.
फाइल क्या है, एक नाम दिया जाएगा फाइल को, कोई भी नाम, सपोज मैंने अभी रिजल्ट का फाइल बनाया है तो रिजल्ट करके मैंने नाम दिया, नेम्ड लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, मैं उसको किसी भी सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पे भी एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में मैं स्टोर कर सकती हूँ। वेयर डेटास आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस, डेटास को परमानेंटली स्टोर करेंगे, हम कभी भी खोल के उस डेटास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इज आवर टाइप्स ऑफ फाइल्स। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, हम 3 टाइप के फाइल करेंगे। अभी हम लोग खाली डेटा टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल कर रहे हैं, तो कॉपी में अभी तुम इसको लिख लो। और CSV फाइल ऑलरेडी यू हैव सीन दैट 3 types of files. This you have already seen 3 types of files: text file, binary file and CSV file. So we are going to do 3 types of files now. So let us start with the 3 types of files. ठीक है, टेक्स्ट फाइल नंबर 1 में लिखोगे, नंबर 2 बाइनरी फाइल लिखोगे, नंबर 3 में CSV फाइल लिखोगे। Computers store every file as a collection of zeros and ones in binary form. कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, फाइल स्टोर होता है, वो किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है, दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other. जो फाइल कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर हुआ है वो सब सीरीज ऑफ बाइट 0 और 1 के लैंग्वेज में स्टोर हो रहा है। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। यहाँ पे 3 कर लो, तुम लोग कॉपी में 3 टाइप्स कर लो: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। अ टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली इसमें ना जब टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का डिफरेंस समझाया जाएगा कि टेक्सचुअल फॉर्म में हो रहा है और वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा है। बाइनरी फॉर्म फास्ट टू एक्सेस होता है और टेक्स्ट वाले में क्या है, पहले वो कन्वर्ट होगा उसके बाद फिर तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है क्योंकि वो 2 के बीच का डिफरेंस समझाना चाहते हैं। A text file consists of human readable characters which can be opened by any text editor. अब इसमें टेक्स्ट फाइल में हम इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स, जो भी हमारा लैंग्वेज है, हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो है कभी भी हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड में या वर्ड में किसी में भी ओपन करके हम उसको रीड कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल है, हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बाइनरी फाइल को ओपन करोगे, अभी तो हम लोग ठीक है एक्सेल में जो डेटा स्टोर करेंगे वो अलग चीज है, लेकिन जब बाइनरी फॉर्म में जो होता है, बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, तो मैं अगर तुमको अभी कोई डेटा या कोई टेक्स्ट में दिखाऊं 0 और 1 के फॉर्म में और मैं तुमको उसको एक्सप्लेन करने बोलूं, सपोज अभी जैसे जो भी लिखा हुआ है तुमको जो भी दिख रहा है, इफ आई आस्क यू टू एक्सप्लेन, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन वेरी इजीली। But here only all 00011111010, all the language of machine language is written here, suppose. And if I ask you, explain what is written here, will you be able to explain? No, because it is a machine language. You don't know that language. So what you have to do, either you have to use an interpreter, compiler, so that it converts a machine language into your language, and so that you can understand whatever is written on the screen. क्लियर? सो टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल होता है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल्स आर मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स विच रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस इट्स कंटेंट। उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टेक्स्ट फाइल में हमको कोई प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। So text file contains only the ASCII equivalent of the contents of the file, whereas a .docs file contains many additional information like the author's name, page setting, font type and size, date of creation and modification, etc. ये तो जस्ट एक डिटेल दिया हुआ है टेक्स्ट फाइल के डिफरेंट
अलग अलग फाइल्स कैसे स्टोर होते हैं, वो ये वाला नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। चलो, next is, now this is very important, what is text file, how we access it. So a text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabets, numbers and other special symbols. जो लास्ट ईयर तुम लोगों ने स्ट्रिंग किया था वही सेम है, इसमें खाली ये एक फाइल फॉर्म में परमानेंटली सेव रहेगा। इसमें भी हम लोग कैरेक्टर, वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ्स enter करेंगे, and then while accessing also same, you can if you want, you will be given the question that access any character, suppose vowels search करना है या कितने a है या कितने space है, same way word, how many this these are there, how many he or she are there, and lines, how many lines starting with a. So all those questions will be asked from this topic. So it is little bit similar to string, only it is saved permanently in a file. Files with extension like .txt, .py, .csv, etc. are some examples of text file, because you will be asked to collect normally the data from internet while creating the project. So which files you will search in internet? You will search these files: .csv file, .py file and .txt file. And from internet you can collect the programs, the datas, and then those datas you can use for your project. When we open a text file using the text editor Notepad, we see several lines of text. However, the file content are not stored in such a way internally. Rather, they are stored in sequence of bytes consisting of zeros and ones. देखो इंटरनली तो वो जीरो और वन के लैंग्वेज में ही स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज जो होता है कैसे होता है, छोटे छोटे पिजन होल्स रहते हैं, जीरोस और वंस। जीरोस पता ही है ऑफ, उसमें कोई ऑफ है ये, और वन मीन्स ऑन। ठीक है, तो ये स्टोर होते समय जीरोस और वंस में स्टोर हो रहा है, लेकिन हाँ तुमको जब वो नोटपैड में डिस्प्ले कर रहा है तब वो टेक्सचुअल फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। इन ASCII, यूनिकोड और any other encoding scheme, the value of each character of the text file is stored as bytes. हर एक में वो internally bytes में ही store हो रहा है। So while opening a text file, the text editor translates each ASCII value and shows us the equivalent character that is readable by the human being. तो ये चीज याद रखना कि टेक्स्ट फाइल में जब हम ओपन कर रहे हैं तब टेक्स्ट एडिटर एक एक ASCII वैल्यू को कन्वर्ट, ट्रांसलेट करके वो तुमको डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस में पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, तो उस समय ये पॉइंट्स को उसमें देना है, एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, द ASCII वैल्यू 65 बाइनरी इक्विवेलेंट दिस विल बी displayed by a text editor as the letter A. So this you already know. A, the ASCII value is 65 and the binary value of 65 is this. Since the number 65 in ASCII character set represents capital A, 65 capital A, 66 capital B, 67 and so on till 90, then from 97 small a, then small b till 121. So this you will remember it. Next, each line of a text file is terminated by a special character called the end of line. Now this you will remember wherever end of line is there, like you will be asked how many lines are there in your text file story.txt. So how to identify how many lines are there? Either there is an end of line special character or /n will be given. For example, the default end of line character in Python is the new line /n. However, the other characters can be used to indicate EOL. You can use any other character for EOL. When a text editor or a program interpreter encounters the ASCII equivalent of the EOL character, it displays the remaining file contents starting from a new line. Contents in a text file are usually separated by white space, but
commas and tabs are also commonly used to separate values in a text file. Normally one white space is used, or any white space, because split command you will use here. So split command will split as per the white space, and you can use comma and tab also to separate the words or whatever you want to separate it. So you can separate the words, characters, or and it can be a numbers, whatever you want to separate using white space, commas and tab. Now next is your binary file. Programs we will do afterwards. Now first you just understand the difference between the text file and binary file. Binary files are also stored in terms of bytes, zeros and ones. But unlike text file, these files do not represent the ASCII values of characters. Rather, they represent the actual content such as image, audio, video, compressed version of other files, executable files, etc. These files are not human readable, as it is not in the form of text or it is not in high level language. You cannot read it. It is in the form of machine language, that is zeros and ones. So you cannot read it. You can see this content data, content you can see, but it will be in machine language, zeros and ones. So you will not be able to understand or read. Thus, trying to open a binary file using a text editor will show some garbage values. For us, it is a garbage value because we will not be able to understand it. But yes, for machine, it is not a garbage value. It is in the form of machine language. ठीक है, तो गार्बेज वैल्यूज मत लिखना इसमें इसमें लिखना नॉन रीडेबल डेटा, मतलब हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए दिखेगा ऐसे कि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे गार्बेज वैल्यू लिखा हुआ है. ठीक है. We need specific software to read and write the contents of a binary file. तो हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर तो यूज कर ही रहे हैं, जो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों. बाइनरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. ठीक है, 0-1 के सीक्वेंस में स्टोर रहेगा. और बाइट्स मतलब एक कैरेक्टर जब हम डालते हैं तो 8 बाइट्स होके वो जाता है. सपोज मैंने 8 टाइप किया है तो इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स के फॉर्म में जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1 बाइट. तो इसीलिए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दिया गया है. Even a single bit change can corrupt the file. ठीक है, मैंने पूरे को सेव करके रखा है और खाली एक बिट को मैंने खाली चेंज कर दिया तो पूरा फाइल करप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जब कन्वर्ट करोगे तो कुछ और ही इंफॉर्मेशन वो तुमको देगा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा. तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और हम जो भी एक एक डेटा डालेंगे, एक एक कैरेक्टर या सिंबल या कुछ भी हम स्पेस भी डालेंगे तो वो इंटरनली 8 बिट्स के फॉर्म में 1 बाइट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. और उस 1 बाइट में 8 बिट्स से उसका एक भी बिट अगर हम चेंज कर देंगे तो पूरा फाइल करप्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड मेक इट अनरीडेबल टू द सपोर्टिंग एप्लीकेशन. उस एप्लीकेशन में वो प्रॉपरली काम सपोर्ट भी नहीं करेगा और वो अनरीडेबल होगा. ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एनी एरर which may occur in the binary file as the stored contents are not human readable. बाइनरी फाइल में अगर कोई भी एरर होता है तो वो हम ह्यूमन बीइंग्स उसको नहीं हटा सकते हैं. ठीक है, देखो डिफरेंस पूरे समझा दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. टेक्स्ट फाइल very easily you can change the content, you can correct if there is any error, क्योंकि वो human readable है. और binary file is not human readable, so neither you can change or remove any error. It is very difficult to remove any error in binary file. We can read and write both text and binary files through Python programs. ठीक है, Python programs से हम read भी कर सकते हैं दोनों
और राइट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, जब हम बाइनरी फाइल्स हम लोग सेव करेंगे डॉट डैट के उसमें, अभी हम लोग जो बाइनरी फाइल पिकल यूज करके करने जाएंगे, उसमें क्या होगा कि जो डेटाज है वो एक्सेल में कहीं पे भी जो भी स्टोर होगा वो रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि उसमें एक्सेल शीट में जब हम उसको ओपन करेंगे, डैट फाइल को स्टोर करेंगे, तो वो हम पढ़ सकते हैं। वो अब मैं अभी स्टोर करके दिखाऊंगी सेव करके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आते हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट फाइल के। 1 मार्क में कैसे फाइल ओपन करोगे, कौन कौन से मोड है, अलग अलग मोड्स, आर क्या काम करेगा, डब्ल्यू क्या काम करेगा, ए क्या काम करेगा, सारे मोड्स है उसमें। Opening and closing a text file. In real world applications, computer programs deal with data coming from different sources like databases, CSV files, HTML, XML, JSON, etc. We broadly access files either to write or read data from it. But operations on files include creating and opening a file, writing data in a file, traversing a file, reading data from a file, and so on. Python has the IO module that contains different functions for handling files. ठीक है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट में तुम्हारे डेटाबेसेस, सीएसवी फाइल्स, ये सारे रहेंगे। और तुमको क्या क्या करना है, तुमको रीड करना है, राइट करना है, मीन्स तुम उस फाइल को क्रिएट करोगे, ओपन करना है, राइट करना है, ट्रैवर्स करना है। तो all the functions which can be done on a file, that all the functions you have to learn one by one how it is done, and each and every function should be present in your project work. Now next is opening a file. यहाँ पे हम open method use करेंगे, function, ठीक है। To open a file in Python we use the open function. The syntax of open is as follows. file object लिखेंगे, open करके जो भी file name और उसका access mode। बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोड रीड मोड होता है। अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे एक्सेस मोड में तो बाय डिफॉल्ट उसका रीड मोड होता है। और बाकी हमको लिखने के लिए राइट या फिर ऐड करने के लिए अपेंड मोड, अलग अलग मोड्स हम लोग, या फिर आर प्लस, बी, डब्ल्यू प्लस एंड ए प्लस यूज करेंगे। बाइनरी में हम लोग आर बी, डब्ल्यू बी एंड ए बी यूज करेंगे। द फाइल ऑब्जेक्ट establishes a link between the program and the data file stored in the permanent storage. फाइल ऑब्जेक्ट का क्या काम है? फाइल ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं इसके पास क्या है? इसके पास लिंक है, प्रोग्राम और वो फाइल के बीच का लिंक है, जो परमानेंटली फाइल जो स्टोर्ड है। तो ये दोनों के बीच का लिंक अभी हम लोग मेमोरी में ये हम स्टोर करके, एक वेरिएबल चाहिए ना हमको, आइडेंटिफायर, एक्चुअली दिस इज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो भी नेम्स है उससे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट यूज किया है, जैसे हम वेरिएबल्स में सेव करते थे सेम वैसे ही है। दिस function returns a file object called file handle which is stored in the variable file object, ठीक है। तो इसमें फाइल हैंडल जो है, कैसे हैंडल कर रहे हैं उस फाइल को, वो सेव किया गया है। देखो वाइवा जब होगा नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, यू विल हैव योर सीबीएसई प्रैक्टिकल, देयर each and every term will be asked, because when I will show you the programs are very easy. In seconds you will understand the program, very easy, you will run the program. All your Python programming is really very easy, बहुत जल्दी रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको बहुत इजी लगेगा। लेकिन जब वाइवा में ये पूछा जाएगा कि तुमने प्रोजेक्ट में, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट डैट या स्टूडेंट डॉट सी एस वी या स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे तुमने सपोज ए बी प्लस लिखा है, तो तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्टूडेंट। यहाँ पे तुमने ये फाइल ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट फाइल बनाया है, ठीक है। जब तुमसे ये पूछा जाएगा सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड
explain these things. So for that you have to understand it. सो इट इज द लिंक, फाइल हैंडल जो है वो इसमें हम डाल दे रहे हैं, फाइल को जो हम हैंडल कर रहे हैं किस मोड में, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। अब ये तुमको समझ में आएगा, मैंने एक फाइल को ओपन किया रीड मोड में, मतलब उससे पढ़ के मैं डेटास को डिस्प्ले करा सकती हूँ। और अगर राइट मोड में मैंने ओपन किया तो मैं कीबोर्ड से या कहीं से भी मैं डेटा को लेके मैं उस फाइल में लिख सकती हूँ। तो अगर यहाँ पे राइट मोड है, then I can write in that file. If the access mode is read mode, then only I can read from the file. I cannot write in that file. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सेस मोड, अभी हम लोग डिटेल में करेंगे एक्सेस मोड, एक एक मोड कैसे काम कर रहा है। तो ये वाइवा में तुम लोग को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। व्हाट इज ओपन, ओपन इज अ फंक्शन। व्हाट इज फाइल नेम, विद दिस फाइल नेम वी विल स्टोर इन द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज एक्सेस मोड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड for accessing this file, like read mode, write mode or append mode. So this file will be open in that mode and we can access that file. तो ये जो एक्सप्लेन हो रहा है, ये इसी मेथड में तुमको एक्सप्लेन करना है। एक एक टॉपिक जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा ये करेंगे, फिर फाइल को, जो भी फाइल ओपन होता है उस फाइल को लास्ट में हम क्लोज करते हैं। अलग अलग फाइल मोड्स कौन कौन से होते हैं, फाइल डॉट नेम, एक्सेस मोड यहाँ पे दिया हुआ है, सारे एक्सेस मोड्स ये तो बाइनरी के दिए हुए हैं, अगर बी को हटा दोगे तो वो टेक्स्ट के हो जाएंगे। तो एक टैबुलर फॉर्म में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि रीड करने के लिए हम कौन से यूज कर सकते हैं, राइट करने के लिए हम कौन से यूज करेंगे, ऐड करने के लिए हम कौन से यूज करेंगे। कुछ यहाँ पे है जो प्लस है वो दोनों काम करेगा, रीड एज वेल एज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 1 मार्क में भी आएगा, 2 मार्क में भी आएगा, ठीक है। कि रीड कितने मेथड से हम रीड कर सकते हैं फाइल में से, और राइट करना है फाइल में तो हम किस मोड में, एक्सेस मोड में ओपन करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में हम लोग करेंगे। फिर फाइल जो भी ओपन होता है उसको क्लोज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने एक मोड में ओपन किया है फाइल को। सपोज सबसे पहले मैं फाइल को क्रिएट करूंगी तो राइट मोड में ओपन करूंगी या अपेंड मोड में, हो जाने के बाद मैं क्लोज करके फिर वापस उसको रीड मोड में ओपन करके फिर उसमें से हम रीड करके कोई सर्च करना है, कोई डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब ये ओपन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, और यूजिंग विथ क्लॉज, तो विथ क्लॉज को हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम नॉर्मल, नेक्स्ट क्लास विल बी प्रैक्टिकल बेस्ड, ओनली वी विल ओपन आइडियली एंड वी विल क्रिएट अ फाइल। इट इज वेरी इजी इन दैट, कुछ नहीं है, खाली ओपन करना है। जो स्ट्रिंग तुमने पढ़ा है इनपुट यूज करके, स्ट्रिंग टेक्स्ट को लेंगे हम लोग, उसमें राइट कर देंगे, फिर ओपन करेंगे हम रीड मोड में, उसे पढ़ेंगे। पढ़ के अगर सपोज उसमें दिया है कि वॉवेल्स को सर्च करके डिस्प्ले करो या काउंट ऑफ दिस करो या फिर लाइन स्टार्टिंग विथ ए, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में राइटिंग इन अ टेक्स्ट फाइल इसको भी करेंगे, प्लस प्रैक्टिकल ऑल्सो वी विल सी हाउ इट इज राइटिंग। नथिंग इज देयर, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट राइट, और यहाँ पे जो भी यूजर्स से अगर ले रहे हो तो इनपुट करके लेके वेरिएबल का नाम, और अगर तुम देना चाहते हो तो डबल कोट्स में यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, राइट में हम डबल कोट्स में डाल सकते हैं। बाकी इनपुट करके भी हम राइट करके हम लिख सकते हैं। अगर कोई इंटीजर को हमको लिखना है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्सचुअल फॉर्म में हम उसमें राइट, ये टेक्स्ट फाइल है तो हम उसमें राइट कर सकते हैं। तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट और राइट लाइंस, एक साथ बहुत सारे लाइंस को लिखना है, राइट लाइंस यूज कर सकते हैं। फिर रीडिंग के लिए हम कौन कौन सा यूज करेंगे, ये इस बार एग्जाम में आया था, प्री बोर्ड एग्जाम में। फॉर रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल विच ऑल मोड्स, तो ये 4 मोड होते हैं एक टेक्स्ट फाइल से। हम नॉर्मली आर को यूज करेंगे, बाकी 3 को हम नहीं यूज करते हैं प्रैक्टिकली जब हम अब करेंगे, लेकिन तुम बाकी तीनों को भी यूज कर सकते हो। तो एक फाइल से रीड करना ये हम लोग सीखेंगे, फिर रीड लाइन, लाइन को जब रीड करोगे तब, और बहुत सारे लाइंस को भी रीड करने के लिए, यहाँ पे तो n नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, n आर्ग्यूमेंट मीन्स खाली 5 लाइंस को अगर रीड करने बोलेंगे तो रीड लाइन 5,
ठीक है। और यहाँ पे रीड लाइन्स से सारे लाइन्स को वो रीड करेगा। तो डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन और रीड लाइन्स एग्जाम में आता है। डिफरेंस को अच्छे से कॉपी में लिख लोगे। रीड के क्या क्या फंक्शन है, रीड लाइन में क्या क्या कर सकते हो, और रीड लाइन्स में क्या क्या फंक्शंस है। तो ये डिटेल में पूरा टेक्स्ट फाइल जो है। अब इसके बाद तुम्हारा राइटिंग एंड रीडिंग तो क्रिएट करना आ गया, तुमने फाइल को क्रिएट किया और रीड करके तुमने डिस्प्ले करा दिया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे कि जो भी स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रिवर्स करना है, तुमको वर्ड्स को रिवर्स करना है, वॉवेल्स को काउंट करना है, या फिर स्पेस को काउंट करना है, कितने वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, कितने वर्ड्स एंडिंग विथ ए। तो जो भी हमने 11th में स्ट्रिंग के जितने क्वेश्चंस किए थे, काउंट ऑफ हिज, काउंट ऑफ दिस, काउंट ऑफ ए, काउंट ऑफ इज, काउंट ऑफ लाइक, जो भी वहां पे काउंट करना है या फिर डिस्प्ले करना है, या लाइन्स स्टार्टिंग विथ ए, लाइन्स कंटेनिंग 4 वर्ड्स, वर्ड्स कंटेनिंग 4 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जो भी हमने 11th पे स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा था, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूजिंग फाइल हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब इसमें टेल मेथड और सीक मेथड क्या काम करता है, ये सारे मेथड्स है, रेडीमेड मेथड्स है, विच डायरेक्टली वी विल यूज टू पुट आवर पॉइंटर। पॉइंटर को अगर कहीं पे भी डालना है, सीक से डाल सकते हैं। सीधे मेरे को 5th रिकॉर्ड को पढ़ना है, मैं सीक से डाल सकती हूँ, और टेल वो बताएगा कि तुम्हारा पॉइंटर अभी कहाँ पर है। तो ये सीक मेथड, टेल मेथड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रैवर्सिंग यही आएगा एग्जाम में। ट्रैवर्सिंग मीन्स एक एक एक्सेस करना, कैसे एक्सेस करते हैं, और उसमें से सर्च करके फिर डिस्प्ले कराना या चेंज करना, कोई डेटा को अगर चेंज करना है, एक टेक्स्ट फाइल से दूसरे टेक्स्ट फाइल में लिखना। अब यहाँ पे तुम्हारा जो सीबीएसई का लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, उसमें दिखेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन उसमें दिया है कि एक टेक्स्ट फाइल के वर्ड्स को हैश से अलग करो। मीन्स सारे वर्ड्स के बीच में हैश डालो। एक टेक्स्ट फाइल दिया रहेगा, यूजर से ले लेना है एक टेक्स्ट फाइल, और उसके हर एक वर्ड को अलग करके, तो रीड डॉट स्प्लिट लगा के अलग करोगे और बीच में हैश डालोगे। ठीक है। तो डिटेल में हम लोग एक एक एक्सपेरिमेंट को, सारे जितने एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये 1 मंथ का सिलेबस है पूरा। टेक्स्ट फाइल के बाद हम ये पिकल मॉड्यूल, बाइनरी फाइल, और लास्ट में हमारा सीएसवी जो हम दूसरे बुक से करेंगे। यहाँ पे डंप मेथड्स एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। डंप मेथड और लोड मेथड दिया हुआ है बाइनरी का, जो इम्पोर्टेंट है। तो सर्च हम यहाँ पे आराम से सर्चिंग तक कर सकते हैं। तो जो सिलेबस में दिया है, देखो ये पूरा दिया हुआ है। और जो फर्स्ट एरर फाइंडिंग में ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक दिया हुआ था, ट्राई में हम प्रोग्राम को लिखेंगे, जो भी एरर रहेगा वो एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। तो एरर हैंडलिंग में ट्राई एक्सेप्ट को भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तुम्हारा खाली बाइनरी तक एनसीईआरटी बुक, दिस इज इन दिस बुक। अगर न्यू बुक आ जाता है एनसीईआरटी का, तो उसमें सीएसवी भी रहेगा। दिस इज योर एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। तो हम लोग पूरा शुरू से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। आज तो थोड़ा सा थियोरी हमने स्टार्टिंग देखा है। ये जो एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का कॉपी में, और जिसमें जिसमें नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट यू नोट डाउन इन योर डाउट्स, एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल द डाउट्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास तो प्रोग्रामिंग शुरू होगा टेक्स्ट फाइल का, तो प्रैक्टिकल पार्ट वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है। तो this also I will show you PPTs also. I will show you how it is being executed, कैसे काम कर रहा है उसका एक एक प्रोग्राम। ठीक है। तो it will take time to understand, है इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क का फोटो दिया हुआ है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो मैं नोट्स को अभी शेयर कर दे रही हूँ, जो भी तुम्हारे नोट्स है, क्या लर्निंग आउटकम्स है, कैसे इसमें तुमको एक एक एग्जीक्यूट करना है, तो ये सारे नोट्स में शेयर कर दे रही हूँ। बुक ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विथ यू, एनसीईआरटी बुक आई हैव शेयर्ड विथ यू, all the different modes, all the question answers. So okay, next class we will start with the programs.